Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 3rd February 2022 and I am teaching you chapter number 21. The name of the chapter is A New Dawn. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video the topics which I cover, that is small recapitulation I have done of Lok Sabha. Then we discuss the Rajya Sabha, which is also known as the upper house, or you can also say the permanent house is also known as a Rajya Sabha. After that we discuss how the president was elected in our country, and as you know that president is the head of the country. President is the head of the country. So these things we have already discussed in the previous video. So let students start. Today we will start formation of a government, how the government is formed. So we will study formation of government. So formation of a government. So student, as I have already cleared you in the beginning of the chapter also, that we have three levels of government in our country. That is, the main government is the central government, the government which is in the center. So central government है, फिर उसके बाद जितनी भी स्टेट्स में, दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज नोन एज, दैट इज इन द विलेजेस, we say it as a gram panchayat. Okay, so when we are talking about the formation of a government, then student, there in our country there is a multi-party system. So okay, multi-party system hai, people elect their leaders belonging to different political parties. So at the time of an election, these parties put up their candidates for election, and the party which get the maximum seats from the government. So student, we have a multi-party system. Okay, so at the time of the election, what happened, all these parties put up their candidate for the election, and method is the people give the votes. Method क्या है बेटा कि लोग क्या votes करते हैं, ठीक है, and the party which get maximum number of a seat, that party form the government with so and और ये कहाँ पे होता है बेटा, ये पार्लियामेंट का जो हाउस है, जो आपको मैंने पढ़ाया था लोकसभा, जो सेंट्रल में दो हाउसेस हैं, एक है बेटा लोकसभा और एक है राज्यसभा. तो लोकसभा में डायरेक्टली वो मेंबर्स आते हैं, दैट आर इलेक्टेड बाय द पीपल बाय गिविंग द मेथड इज बाय गिविंग द वोट एट द टाइम ऑफ ए इलेक्शन. अब जिस पार्टी को बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलती है, वही पार्टी क्या फॉर्म करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है. और इस ये जो लोकसभा है, और इसके जो हेड होंगे, हेड इज नोन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड हेड इज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. एंड द हेड ऑफ दिस लीडर इज अपॉइंटेड, और इनके जो लीडर होंगे या हेड इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द country. In present time, the government in the central is of a BJP, and the prime minister of our country is Mr. Narendra Modi. Okay, now next point, that is the after this, ये तो हमने बात कर ली सेंट्रल की, ये बात की हमने सेंट्रल की, ठीक है, ये बात हमने सेंट्रल, क्योंकि देखो सेंट्रल हो या स्टेट हो, सब जगह क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है. द डिफरेंट पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ए इलेक्शंस. सो एंड द पार्टी विच गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, वो पार्टी जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट मिलती है, दैट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट. अब जहाँ जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली, उसने कहा क्या बनाई, गवर्नमेंट फॉर्म की, और द लीडर या हेड जो हुआ इस लोकसभा का, उसी को हमने बोला प्राइम मिनिस्टर, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. ये है आपका सेंट्रल में, ये क्या कैसा है बेटा, ये आपका सेंट्रल में है, ठीक है. और
अब इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगेन इन द स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या होता है, एवरी स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम यही है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऑल द पार्टीज पुट अप देयर कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड द पार्टी विच गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट दैट पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। अब स्टेट की जब बात करते हैं तो बेटा स्टेट का जो हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है बेटा दैट इज योर गवर्नर। हेड ऑफ द स्टेट क्या, जैसे यहाँ सेंट्रल में जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट होगी तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। ओके, वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इसमें स्टेट में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो गवर्नर होता है, ठीक है। यहाँ भी सेम ही मेथड है बेटा, मल्टी पार्टी सिस्टम है। एट द टाइम ऑफ ए इलेक्शन दे पुट अप देयर कैंडिडेट्स, वो अपने अपने पार्टीज के कैंडिडेट्स को पुट अप करते हैं इलेक्शन के समय, और जो पार्टी मैक्सिमम सीट विन करती है दैट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। और इसके लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए जिस पार्टी का मैक्सिमम सीट होती है वो किसके पास जाता है, गवर्नर, ठीक है, वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। तो ये जो आपके गवर्नर हैं, ये if that governor will give the permission to that party to form the government in that state. Okay, so अब देखो, अब क्या है, every state has a legislative assembly। जैसे सेंट्रल में लोकसभा होती थी और राज्यसभा होती थी, तो अब स्टेट में क्या होगी, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड। अब देखो कुछ चीजें काफी कॉमन तुम्हें यहां से मिलेगी, जैसे लोकसभा है, लोकसभा द टाइम पीरियड ऑफ द लोकसभा इज 5 इयर्स, 5 इयर्स होता है। इसी तरह ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी बेटा स्टेट में, उसका वर्किंग टाइम कितना रहेगा, इसका भी वर्किंग टाइम रहेगा 5 इयर्स, इसका वर्किंग टाइम भी क्या होगा, 5 इयर्स। और व्हाट इज द मेथड, मेथड इज द सेम as it is written in the constitution, every citizen whose age is 18 or above 18 can give the vote। लेकिन बेटा जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, जैसे यूपी में इलेक्शन हो रहा है, अगर इलेक्शन यूपी में हो रहा है तो दोज पीपल हु आर लिविंग इन द यूपी, जो लोग यूपी में रह रहे हैं वही वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र वाले आके यूपी में वोट डाल के चले जाएंगे, नो। अपनी अपनी स्टेट में इलेक्शन होता है तो उस स्टेट में जो लोग रहते हैं बेटा वही लोग उस इलेक्शन में वोट्स देते हैं इन कैंडिडेट्स को। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। अब मैंने क्या बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट का बता दिया, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, द पार्टी विच विन गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट दे विल गो टू द गवर्नर एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट इन दैट स्टेट। और जैसे यहाँ पे लोकसभा थी तो यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, इसका टाइम पीरियड कितना रखा था कॉन्स्टिट्यूशन ने, 5 इयर्स। आफ्टर 5 ईयर लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, एंड अगेन देयर इज अ री इलेक्शन। ओके, इन द सेम मैनर इन स्टेट आल्सो द टाइम पीरियड इज 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा, ये जो डिसॉल्व हो जाएगी, अगेन देयर इज अ री इलेक्शन। और ये जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट में, दैट इज द done by the president of our country because he is the head of the country। तो गवर्नर अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और गवर्नर ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन फॉर्म करने की परमिशन देता है जिस पार्टी को मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स मिलती है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा था, लोकसभा के मेंबर्स को हमने बोला था एमपी। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब जो आपकी ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो इसके जो मेंबर चूज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एमएलएज। इज इट क्लियर? इसके जो मेंबर बनते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एमएलएज बोलते हैं, ठीक है। और ये मैंने बता दिया कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, गवर्नर। शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 इयर्स। और इसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर का वर्किंग टाइम भी कितना होता है बेटा, 5 इयर्स होता है।
अब देखो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हेड बना इनका जो हेड बना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे लोकसभा थी, लोकसभा में बहुत से लोग आए लेकिन उनका जो हेड बने थे वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इतने मेंबर्स, इतने एमएलएस का जो हेड बनेगा, इतने एमएलएस का जो हेड बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे चीफ मिनिस्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे चीफ मिनिस्टर। इसको हमने क्या बोला? चीफ मिनिस्टर। देखो सारी स्टेट के अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं। जैसे करंटली हम लोग कहाँ रहते हैं? वी आर लिविंग इन यूपी। हम कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। इसी तरह जितनी भी अलग अलग स्टेट है उनके सब में अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूरा जो मैंने बताया ये पूरा स्टेट गवर्नमेंट। एक रिकैप्चुलेशन मार देता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन का मेथड बिल्कुल सेम है जैसे सेंट्रल में था, या मल्टी पार्टी सिस्टम है। ऑल द पार्टी पुट अप द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन एंड द पार्टी विच गेट मैक्सिमम सीट्स। ठीक है, जिस पार्टी को मैक्सिमम सीट बना मिलती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो हर स्टेट का जो स्टेट का हेड होता है वो गवर्नर होता है। इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कितने ईयर के लिए करते हैं? 5 ईयर्स के लिए करते हैं। और जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट बना पाती है वो कहाँ जाती है? गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए गवर्नर के पास जाती है। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 5 ईयर्स है। इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एमएलएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सारा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ये हो गया। अब देखो आ जाओ यूनियन टेरिटरीज। अब देखो यूनियन टेरिटरीज। देखो यूनियन टेरिटरीज अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, इसके लिए इस प्रीवियस चैप्टर 11 में हमने काफ़ी लंबे में डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने आपको पढ़ाया था कि क्यों इनको हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज में रखा। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो देखनी है कि व्हाट इज यूनियन टेरिटरीज एंड हाउ दे आर फॉर्म, आप चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 11 नेम ऑफ द चैप्टर, एक मिनट में रिकैप्च कर देता हूँ आपको। इंडिया आवर कंट्री। सो इस चैप्टर की वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल डिटेल पता चलेगा। ये शॉर्टकट में मैं बहुत क्विक रिकैप्चुलेशन कराता हूँ यूनियन टेरिटरी। देखो ये ऐसे पार्ट्स हैं कंट्री के जो कि जो लेंथ वाइज डिस्टेंस वाइज क्या लेस है। ठीक है, इनका एरिया लेस है, या तो किसी रीजन से ये दूसरे एरिया से इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, या तो इनका कल्चर अलग है बाकी जगहों से। ठीक है, या तो कोई पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। ये सब बेस के पे हमने कुछ इंडिया के ऐसे पार्ट्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरीज में रख दिया। फॉर एग्जांपल जैसे अंडमान निकोबार है। ठीक है, दोनों ही आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह है, पानी के बीचों बीच है, पानी के बीच में ये लैंड है, तो इसकी कोई लैंड बाउंड्री किसी भी स्टेट से नहीं है, डाल दिया इसको यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, क्योंकि वहां पे रहने वाले भी जो लोग हैं उनके जो रहन सहन का जो ढंग है वो टोटली वो बहुत डिफर है अदर पार्ट्स कंट्रीज थे। तो इन लोग को हमने सोचा क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की, एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी से इनकी बना दी। ठीक है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरी में डाल दिया क्योंकि एज वी नो दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। अब कैपिटल को किसी स्टेट में डाल देते तो कंफर्म है जिस स्टेट में वो कैपिटल होती तो वो उसके बारे में ज़्यादा करती, लेकिन सेंट्रल क्या मेन गवर्नमेंट है तो और जो पूरे देश को देख रही है, तो हमने सोचा कि इसलिए दिल्ली को भी क्या यूनियन टेरिटरी में डाल दो, जिससे कि कोई मतलब किसी स्टेट में हो जाएगा तो उसी के बारे में वो ज़्यादा सोचेगा। ऐसा होता है। ठीक है, जैसे अब यूपी का चीफ मिनिस्टर यूपी के बारे में ज़्यादा सोचेगा कि क्या क्या करूं यूपी के लोगों के वेलफेयर के लिए, ना कि कोलकाता के या अदर पार्ट ऑफ द कंट्री के। तो दैट इज द रीजन इसको भी यूनियन टेरिटरी में रखा, जो कि दिल्ली में भी चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है।
ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल रीजन में एक ले लो, एक एग्जांपल और सेटअप कर देते हैं, जैसे पंजाब के टुकड़े हुए तो हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया, चलो हिमाचल तो उधर चला गया, हरियाणा अलग हो गया। तो उस समय पंजाब की जो कैपिटल थी वो चंडीगढ़ थी, चंडीगढ़, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सिटी, बहुत हाईटेक सिटी है चंडीगढ़, ठीक है। लेकिन अब जब हरियाणा अलग हो गया तो हरियाणा ने भी बोला कि ना, मुझे कैपिटल चाहिए तो चंडीगढ़ चाहिए। इधर पंजाब वाले भी नहीं तैयार थे चंडीगढ़ को छोड़ने के लिए, दोनों में वो हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने सोचा कि दोनों को खुश करने के लिए चलो क्या करते हैं, पंजाब और हरियाणा का कंबाइंड कैपिटल किसको बना दिया, चंडीगढ़। आ गई बात समझ में, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया और पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ हो गई। तो इसी तरह अलग अलग चीजें हैं बेटा, जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरीज आई थी। देखो इस समय प्रेजेंट टाइम में अब आपके जम्मू कश्मीर क्या है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन देयर इज चेंज इन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ में थोड़ी चेंज की गई और इसे भी यूनियन टेरिटरी में कर दिया गया। अब देखो दे आर स्मॉल रीजन विच कुड नॉट बी टेम्पर्ड एज ए सेपरेट स्टेट। ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये जो रीजन है एरिया वाइज काफी स्टेट है, तो जो कि जितनी भी स्टेट्स है ये काफी बड़ी बड़ी होती हैं। स्टेट्स में बहुत से बिग सिटीज होते हैं, बहुत से विलेजेस होते हैं, तो एरिया वाइज ये काफी छोटे हैं। इसके कारण भी इन्हें क्या सेपरेट स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। दे आर गवर्न बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर नहीं, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब जो भी सेंट्रल में जो भी डिसीजन ये सब लिए जाते हैं वो सारे यूनियन टेरिटरीज ये सब में फॉलो होते हैं। अब देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ, इसके बाद है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा क्या आएगा, जो मैंने तुम लोग से थर्ड लेवल के गवर्नमेंट की बात की थी, वो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज द विलेजेस एरिया में जो होती है, क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो विलेजेस एरिया अब ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन वर्कआउट करता है, अब देखो विलेज में करेगा, विलेज में ग्राम पंचायत, विलेज में कौन करेगा, विलेज में ग्राम पंचायत करेगी। अब देखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, एक क्विक रिकैपिचुलेशन के संग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, डिगिंग ऑफ द वेल्स, नीट सराउंडिंग, अरेंजमेंट of electricity for the people's, maintenance of the road, repairment of the road, construction of a new building, education for the children, education for the चिल्ड्रन जो हो गया, उसमें वो लोग अरेंजमेंट करते हैं। वैसे स्कूल तो रन आउट कौन करा रही है, गवर्नमेंट स्कूल रन हो रहे हैं, हाँ उनको देखने का काम करते हैं, फैसिलिटीज ये सब कराने का, ठीक है। और अगर विलेज में कोई भी बच्चा पैदा होता है या कोई पैदा हो रहा है या कोई किसी की डेथ हो रही है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट भी इशू करने का वैसे तो अब ब्लॉक्स के पास चला गया है, पहले होता था, लेकिन प्रधान ऑफ दैट विलेज वो साइन करके देता है, उसके बाद ब्लॉक पे बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी डिस्कस की, और टाइम टू टाइम अरेंजमेंट ऑफ द सेमिनार्स फॉर द फार्मर्स सो दैट दे आर अवेयर विद द न्यू टेक्नोलॉजीज विच दे कैन अप्लाई इन द कल्टिवेशन फील्ड। टाइम टू टाइम वेबिनार और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अरेंज कराई जाती है विलेजर्स के लिए, जिससे कि आज के नए टेक्निक्स से वो लोग कल्टीवेशन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एंड गिविंग देम अ गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत की। जो किसान लोग हैं वो गरीब है, उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अच्छे क्वालिटी के सीड्स दिए जाएं, ठीक है। सो दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, एंड इवन teams of the doctor that also come in the villages area, and they tell the people of the villages about the hygienes, how they can take care of the hygienes, how they can, okay, so how they can be fit and healthy
how they can take care of their hygiene. So time to time these things are also arranged by the gram panchayat for the people of the villages. Okay, we will continue this topic in the next video. Thank